اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ کسی کی عمر کا چھوٹا کرنا یا کم کرنا سامنے آ جائے تو کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کئی جگہوں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر رہا ہو. اب میں آپ کو تضاد دکھاتا ہوں. ایک تضاد ہے کہ داؤد کو جاتی جولیت کو الحنان نے مارا یا جاتی جولیت نے مارا، الحنان نے مارا یا جاتی جولیت کو داؤد نے مارا. واقعہ ہے، ٹھیک ہے. الحنان ایک جگہ مارتا ہے. جب میں وہ اعتراض کروں گا اس کا جواب میری گل سن لو، گل تو سن لو نا. سوال بندے کو جواب چلا یار. جنہوں نے آپ کو یہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ یار میں گٹے تے ماری تہاڈی اکھ نکل گئی. میری گل سنو، اس کا جواب دے جو میں اس کا بھی جواب دے رہا ہوں. اگر آپ نے عمروں کی اسٹڈی کرنی ہے نا، عمروں کی کہ عمر کہاں پہ کہاں چھوٹی ہے کہاں زیادہ، تو اس طرح کے تضادات تو میں خود بیان کرتا ہوں. بائبل میں ہیں، بائبل میں نہیں، تراجم میں ہے. آپ اپنے متن پیش کر دیں. کون سا ہے متن میں؟ جب بھی آپ پیش کرتے ہیں ایل ایکس ایکس متن ہے. ایل ایکس ایکس متن ہے. متن ہے جی ہاں، حقیقی متن ہے. بالکل. یہ بائبل متن نہیں ہے. ایل ایکس ایکس متن نہیں ہے. آپ ایل ایکس ایکس کو مانتے ہیں؟ ایک منٹ سر، ایک منٹ یار، بات ہی ختم ہو گئی. آپ اس کو مانتے ہیں؟ ایک منٹ. ایل ایکس ایکس ترجمہ ہے متن کا. ایل ایکس ایکس متن کا ترجمہ ہے. میں تحریف آپ نے تسلیم کر لی. او بھائی کو مسئلہ ہے، کوئی تسلی سے بھی سنیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ تراجم میں تحریف ہے. آپ نے دعویٰ کیا تراجم میں تحریف ہے. تو سے ترجمہ ہے، متن پیش کریں. تو جو ترجمہ یہ ساتواں سوال ہے آپ کا. یہ جب جو صحیح ترجمہ ساتواں سوال ہو گیا آپ کا. جب یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تراجم میں تحریف ہے، تو ہر ترجمے کو نہیں اس میں لیا جاتا. کچھ متن ایسے، کچھ تراجم ایسے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تراجم ایسے ہیں. جواب ہو گیا یار، انت نہ کرو. میری بات سنیں. ایسے نہ کرو، میں سوال ہی نہیں کرتا. اگر یہ کر لیتے ایسے تو نہ کرو، ایسے تو نہ کرو. جب میں بول رہا ہوتا ہوں بیچ میں بول اٹھتے ہیں. آپ پہلے جواب بھی تسلی سے سنیں نا، پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی مسئلہ ہے کوئی. یہ کون سی بات ہے؟ نہیں دیکھیں، جو سوال ہے وہ کریں. نہیں سوال پھر میں ذاتیات پر بات کریں گے. میرے ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا، مجھے بتا دیں کسی ایک سوال. آپ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ پہ ذاتی حملہ نہ کریں، ہنسے بھی نہ، اور آپ اس کے اوپر مسلسل. تو میں نے کب کیا؟ کون سا کیا؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ذاتی حملہ نہ کریں، اور آپ سے بھی ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بار بار شعر و شاعری کر رہے ہیں. میں سوال کریں اور جواب دیں. سنیں، آپ نے جتنی میں نے آپ کو سادہ سا مشورہ دیا کہ عمروں کے اندر معاملات دیکھنے ہیں، تو آپ تراجم کو پڑھیں، پھر متون کو پڑھیں. ٹھیک ہے، متون کے اندر ہم تو خود کہتے ہیں کہ ترجمے کے اندر کاتب کر متن سے پڑھ دے، متن سے پڑھ دے. اگر وہاں ایسے میرے ساتھ مناظرہ بائبل پہ رکھے، میں آپ کو متن سے پڑھ کے دوں گا. تو کس پہ ہے؟ چلے ٹھیک ہے، قرآن پہ. بائبل پہ نہیں ہے. یہی تو بات ہے آپ کی. بائبل اور قرآن پہ بات ہو رہی تھی، آپ بار بار موڑ کے. یہ جو مناظرہ ہے یہ صرف قرآن مجید پر ہے. بھائی یہ الزام آپ نے مناظرے کا سارا رخ بدل دیا. بہرحال یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، 4500 بائبل میں بھی آپ مجھ سے رکھیں. دریافت کرنے تھے، میں آپ کو دکھاتا. آپ 4500 تضادات کے اعتبار سے پوچھا. قرآن مجید کو سننا چاہ رہے تھے. بائبل آپ سوالات دیکھیں، آپ سوالات پوچھیں مجھ سے قرآن مجید کے حوالے سے، میں دوں نا. ہاں جی، اچھا جی، 8واں سوال کریں گے. تواتر والا سوال کر لیں مجھ سے. میں قرآن نہیں، ایک منٹ، ابھی 8واں سوال ہے ان کا. ٹائم تو پہ آپ مجھ سے الگ مناظرہ کر قرآن مجید کے تواتر پہ کر لیں. میں ابھی بائبل سوال کی بات بائبل کا اور قرآن کا تواتر یہ الگ مناظرہ رکھ لیں آپ مجھ سے. 8واں سوال کریں. ہاں 8واں سوال کیجئے. تضادات. ہاں جی، تضادات. میرے بھائی نے دعویٰ کیا تھا 4500 تضادات. مجھے ہمیں ایک بھی نہیں دکھایا گیا. اور میں نے انہیں کہا تھا کہ بائبل کے اندر قرات کا بھی فرق ہے، ہم اس کو تضاد نہیں کہتے. آپ نہیں کہتے نا سر؟ ہم نہیں نا کہتے، ہم نے مثالیں دی ہیں کہ یہ قرات کا فرق ہے. سنیں، یہ قرات کا فرق ہے. تضاد کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں. پیدائش 11:12 کے اندر ہے. اچھا، بڑا اچھا. سلا کا باپ ارفقست تھا. لوکا 3:35 کے اندر ایسلا کا باپ کے نام تھا. اسے کہتے ہیں تضاد. پیو ہی بدل دیتا ہے یار. تم باپ بدلو نا، کہیں باہر نکل کے کسی کا باپ بدلیں، ذرا پتہ چل جائے کیسے باپ بدلتے ہیں. تضاد اس کو کہتے ہیں، اختلاف اس کو کہتے ہیں. یہ 8واں سوال تھا آپ کا. جی جی، قرات میں اور تضاد میں فرق کیجئے. ایک تضاد مجھے قرآن کریم سے دکھا دے. تو ایک بھی 4500 کا دعویٰ تھا، ایک بھی نہیں دکھایا. میں نے آپ کو بائبل کے اتنے والے دی کہ تضاد اس کو کہتے ہیں. قرات کا فرق نہ دکھائیں مجھے. سوال کیا تھا؟ یہ سوال ہے. یہ سوال ہے کر دیا انہوں نے، سن لیا. تواتر کا سوال ہے یا وہ؟ نہیں، سوال میرا یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب کہتی ہے کہ سلا کا باپ کون تھا؟ ارفقست تھا. لوکا کہتی ہے کہ سلا کا باپ کے نام تھا. چلو جی، سوال ہو گیا. جی، سوال ہو گیا. ارفقست اور کینان کا فرق جو ہے وہ بتائیے. ارفقست اور کینان کا فرق سیپٹویجنٹ پڑھیں حوالہ.
पढ़ दें, LXX पढ़ें, पढ़ दें। ठीक है। वो पढ़ देंगे लेकिन वो बाइबल ये LXX का बाइबल तर्जमा है, ये LXX का तर्जमा है नहीं, क्या सेप्टुएजिंट का तर्जमा है? नहीं, नहीं, किसका है? मसूराती का है। यही तो पता नहीं है आपको, ये मसूराती का तर्जुमा है। आपको पता है? बिल्कुल पता है। वो मतन है हकीकी, वो बाइबल है। मतन हकीकी नहीं, वो हकीकी मतन का तर्जुमा है। अच्छा, कब हुआ- हकीकी कब मतन हुआ का सुनना तर्जुमा चाहते है। हैं? आपने मुझे बयान उसका नहीं करने इनकार दिया। तो नहीं करेंगे आप? हाँ जी, उसका सवाल है। इनकार तो नहीं करेंगे? 9वां सवाल हो गया। नहीं नहीं यार, इंज ना करो सर उन पहले ना यार, सानू का वोट के तोड़ जो यार, इंज ना करो, आपने तजादात इंज ना कैसे- करो। सर देखिए हकीम साहब, एक ऐसे बात ना करते करें, हैं, एक बात ऐसे ना करना चाहता करें। हूं। देखिए उनको जवाब तो आपने दे उससे भी मुकर जाना है। जब मैंने वहां से बरनाबास निकाला, आपने मुकर जाना, कहा मैं नहीं इसको मानता जी। जब मैंने हरमैस का चरवाहा निकाला, आपने कहना मैं नहीं LXX को मानता जी, मैं नहीं इसको मानता जी। आपने उससे भी इनकारी हो जाना है। असल मतन दिखाएं, मतन, और इसका जवाब दें। ओ भाई आ जड़ा प्यो बदलिया जो दी गल करो चलो यार, एक की मिनट हो गया ना, ओदी ये गल। सवाल हो गया। चले जवाब दें। आपके पास मुसाहफ है नहीं, आप मुसाहफ की बात करते हैं, सोहफ तो आपके पास भी नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप मुझसे वो बात करें जो कुरान मजीद में है। 45,000 तजादात की बात है, बैठ के बैठ 4500 तजादात की बात है। आपने मुझसे 4500 तजादात माइक एक सही सवाल कर नहीं ले, पूछा। माइक सही। मुझे 1 मिनट देंगे, आपने सवाल पूछा? सिर्फ 1 मिनट। नहीं, एक नहीं, ये मेरा आपके सवाल नहीं, 4500 मैं बाइबल का मैं सवाल वजाहत करना कर दूं, शुरू मैं कर दिया। वजाहत कर दूं। आप 4500 मेरे भाई- तजादात पूछने आए हैं, वो मुझसे दरियाफ्त करें। मेरे भाई सुने मेरी बात, ये दावा था आपका, मेरी बात सुने। अच्छा, तो सवाल किसके बनते सर थे? सुन ले यार, मेरी बात सुन लेना। आपने सवाल किए नाम से, ठीक है। आपका था दावा, आपने एक बुतान लगाया। पहला बुतान ये शिया का कुरान अलग, सुन्नी का कुरान अलग, उसके ऊपर आपने माजरत की। सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले, क्यों ऐसे करते हैं? मैंने दिखाया है उसको, वो हो चुकी है बात है, वो कैमरे में मौजूद है, ठीक है, वो गई बात। अब आपने कहा 4500 तजादात है, मैंने कहा था कि मेरे अभी भाई आपने 8 प्यारे सवाल भाई किए हैं। और मेरे प्यारे 8 सवाल आपने किए, इनमें से एक भी सवाल इस पर प्लीज पूछा भाई मुझसे? मेरी बात सुन, नहीं पूछा। मेरी बात तो सुन ले। ये तो इनका माइनस मेरे पॉइंट भाई, जा रहा है ना, मैंने वापस करने दें उनको। मैंने सवाल नहीं आपसे पूछे गुजारिश वो की करने थी कि मेरे भाई आपको किरात का फर्क और तजाद का फर्क मालूम नहीं है। आपने जो किरात की मिसालें दी, मैंने कहा हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी से वो तो साबित फिर है, आपसे अपना ठीक है। आंसर दे दिया था। और मैं तो आपको तफसीलात- बता रहा हूँ तजाद कहते किसको है, इसको तजाद कहते हैं। इंसानी कलाम कैसे कहते किसको है, इसके बहरहाल वो बात ये करके बात ना आप लो। अपने जवाबात यार में ये कह बाप चुके हैं। बाप चले। बदलने वाली बात करे, ये बात अपने जवाबात में आप लोग कह चुके हैं। और फकस सवाल का ठीक है। जवाब दे। के नाम की ये बात बात आप अपने सवालात में जवाबात में कर चुके हैं। अब आपका सवाल करना बनता है। कर तो दिया। आप तावीलात में जा रहे हैं। 4500 तजादात पे आपने मुझसे सवालात पूछे नहीं, आप बाइबल का सवाल लेके आ रहे हैं। सवाल हमने क्या पूछा? चले चले जवाब दें आप। जवाब सवाल दे आप दें ये कर रहे ताकि हैं। ये- अभी कैनान और तो आप अरफक्सद साबित ही की नहीं बात कर रहे हैं। सके। वो तो एक्चुअली आप- अपने वो तो टॉपिक से आपने अगर देख हट लिया। रहे हैं ना, तो ये उनका वो तो माइनस हमने पॉइंट देख है, लिया। आप जारी रखें। चलो वो तो अभी जो तय हो गया ना, जो बन गया है, नहीं, माहौल जब बन गया, शुरू हो उसको गया जारी रखें। सर, जब हो गया ये मुनाजरा इसी तरह तय होना था, ठीक वो है। तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आपका जवाब, टाइम कितना रह गया? ठीक है, टाइम हो ठीक है, चुका है। आपका मैं नवा फिर सवाल है ये अरफक्सद के बारे में। 2 मैं आपको सवाल जवाब कर ले, देता तो फिर हूं। मैं इसको फिर बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये इख्तियार भी मेरे पास है। ठीक है ना, आपने सवाल कर दिया। अरफक्सद वाला मामला, चूंकि आपने लूका की इंजील से देखा कि कैनान किसका बेटा है, ठीक है, कैसे हुआ ये मामला, आपने कहा जी आपने उसका बाप तब्दील कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा आपने फ्लो में बात की। चले, आपने कह दी क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ आपको ऐसा लग रहा है। अब आप कहें जी किरात में फर्क, तो हम किरात में फर्क नहीं मानते। ये किरात का फर्क कौन कहता है? किरात जवाब में दे फर्क लेने नहीं है। ये जवाब तो तजाद है, देने- कॉन्ट्राडिक्शन है। जवाब किरात देने का दो। फर्क, वो किरात का फर्क नहीं है ना। फिर इसका जवाब आपको LXX में मिल जाएगा। LXX के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा सुकून के साथ। जवाब ठीक है, जब आप पढ़ते हैं कि अरफक्सद बिगॉट कैनान, आयत पढ़िए मेरे साथ। मैंने ये आपने कहा जी आपने मनाजरों में बात की, आपने मेरा तीसरा मनाजरा सुना नहीं? उसके अंदर मैंने ये बाकायदा लिस्ट पेश की थी क्या? कि इसके अंदर यहाँ पर जब पैदाइश की किताब 5वां बाब हम पढ़ते हैं, 5वें बाब के अंदर इसका जवाब मिलता है, लेकिन LXX में मिलेगा आपको। LXX में मिल ये जाएगा। तो तर्जमा है, चले जी, ठीक है, तर्जुमों में तहरीर चलो, है। LXX का मुसद्दिक जनाब का हो गया, जवाब हो गया ना उनका। हो गया। LXX का मुसद्दिक कौन है? जनाब का फरमान है, तर्जुमों में सर, तहरीफ है, उनका जवाब होने दें। मतन में तहरीफ नहीं है। और ये नौवां सवाल करें आपको ये जी, बात नौवां समझ सवाल नहीं करें, आएगी नौवां सवाल। क्योंकि आपने अपने मतलब की बात लेनी, आप समझना नहीं। टाइम खत्म हो गया है, अगर आप इसी तरह बहस करते रहेंगे तो आप मैं तहकीक समझना नहीं। मुनाजरे को 45 कर दूंगा। तजादात पे आपने सवाल मुझसे नहीं किया, आपने बाइबल पे किए हैं सारे सवाल। जी, मेरा अगला सवाल जी, ये जी, है नौवां सवाल। कि मेरे भाई ने दावा किया था 4500 तजादात जी का। सर, हम यहाँ कराची गुजरांवाला से आए, बिल्कुल सर, हमने बड़े ज़रूरी काम थे जो हमने छोड़े। माशाल्लाह।
ठीक है, बड़े ज़रूरी हम अपना जाहिर सी बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। कीमती वक्त था हम वो ज़ाया करके बहुत बहुत शुक्रिया। किराया खर्च करके आए हैं, किराया खर्च करके जाएंगे। सर इमोशनल ना करें, बस बात मुश्किल करें। नहीं, सुन ले जरा, मैं हैरान हो गया। नहीं, अभी हमारे मैं रोक पाँव दूंगा, अगर आप तले इतनी बात के करेंगे तो मैंने आपका नीचे इतना से बताया किया। जमीन निकल गई थी। वो 4500 तादाद आता है, 45 उसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। भाई यहाँ तो चूहा भी नहीं निकला। मेरे भाई, मेरे आपसे ये सवाल है कि मैंने आपको तजाद का बाइबल से, आप कह रहे थे ना बाइबल का अनुमान नहीं है, मेरे भाई इसे कहते हैं मुनाजरा की ज़बान में इल्ज़ामी जवाब कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको मिसाल दी है कि किरात का फ़र्क क्या है, तजाद क्या है। आपने जितनी मिसालें पेश की किरात की, सुन ले सवाल कर देना, मेरा प्लीज। सवाल पूरा होने दे। आपने कुरान करीम से जितनी मिसालें पेश की वो सारी मिसालें सी किरात की, और वो भी अल्लाह के नबी से साबित। ठीक है, वो भी मतवातर, शाज नहीं, मतवातर। वो तो हम तस्लीम करते हैं, वो तो तजाद है ही नहीं है। तजाद मैंने आपको चंद बाइबल से हवाले दिए हैं कि इसको तजाद कहते हैं। ठीक है, एक का भी जवाब आपने मुझे नहीं दिया। ठीक है, और मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपने दावा सर, किया था सवाल- 4500 का, ये आप कहिए ना। एक ओनली वन कुरान करीम से ऐसा पेश कर दे जब से आप- तजाद, जो मैंने यहाँ से साबित करके दिए कि तजाद और अच्छा। किरात के फर्क को अच्छा, एक नवा पेश सवाल- कर दे, नवा नहीं सवाल- तो अपना दावा नवा वापस सवाल ले है। ले। ठीक है जी। नवा सवाल है। सर ये 10वां हो गया, नामा तो चला गया। चले कोई बात चले नवा हो गया। नामा हो गया। हाँ, 9th क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। 9th क्वेश्चन जी। 10वां आपने तो नामा क्वेश्चन आपने किया था अरफक्सद वाला। ये भी हो गया, चलो नामा चलो नामा जी, चलो। अरफक्सद वाला किया था। 10वां सुनिए अभी। ये भी हो गया। नहीं अच्छा। अब मैं तजाद की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि तजाद पेश कर। जी तजाद पेश कर। माशाल्लाह। कुरान मजीद की आयत खोलिए। जी खोले जी कुरान। मुझे जवाब देने दीजिएगा, आप रोकिएगा नहीं मुझे बीच में। मुझे जवाब देने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं बीच में। मैं 3-4 चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? ये नहीं, ये हफ्स और वर्ष से, जी जी, हफ्स और वर्ष उससे तजाद पेश करेंगे आप। हफ्स और वर्ष से। हाँ ठीक है, करें। ना, हफ्स और वर्ष से। खोलो जी ठीक है। कुरान कुरान करीम हवाला दे, आयत हदीद खोले जी। हदीद आयत नंबर 63। आयत 63 हाँ 63 नहीं, सॉरी 23, सॉरी 23। 63 मुझे दे। बुजुर्ग से कहिए जरा वो पढ़ दीजिए, अगर वो पढ़ देंगे तो अच्छा हो जाएगा, प्लीज। अब अगर तसल्ली से आप जवाब सुनेंगे तो मुझे बोलने दें बस। मैं ठीक है। अच्छा सवाल, एक मिनट, सवाल खत्म होने के बाद 5-5 मिनट दोनों को एंड में दे दें अपनी गुफ्तगू। सर वो तो खत्म हो गया ना, वो खत्म हो गई बात। नहीं वैसे बहुत कुछ हो गया। अच्छा हाँ जी, चल हाँ जी, ठीक। बिल्कुल। हाँ हाँ, आयत नंबर 23 सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम भाई खामोशी इख्तियार कीजिए लिकै प्लीज। ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर अल्लाहु। कुल्ला मुख्तालिन फखूर। आयत नंबर 23 पढ़ी सर आपने, आयत नंबर 24 पढ़ी अब। अल्लज़ीना यबखलून व यअमुरून अन्नास बिल बुख्ल व मन यतवल्ल फइन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। फान अल्लाह हो। हुवल गनियुल हमीद। प्यारे भाई मुझे ये बताइए, भाई आपसे कहा गया है कि मुझे तजाद दिखाएं, आपको तजाद की और इसकी कितनी मिसालें बयान की हैं, क्या तजाद है बयान करें ना जरा। नहीं आप वहाँ बैठ के तजाद बयान करें, फिर मैं बताऊंगा आपको। तजाद बयान करें वहाँ बैठ के जरा। एक ये हो गया। बात करते हैं किरात की, बात करते हैं, हवाला देते हैं। इसमें लिखा है फान अल्लाह उल गनी, ठीक है? जी। वर्ष में लिखा है फान अल्लाह उल गनी, जी ठीक है जी। हफ्स कुरान में लिखा है, ये रवायत आपके पास मौजूद है, रवायत हफ्स अल-आसिफ बिन रस्म उस्मान, जी जी ये मौजूद है। यहाँ पे आपको मिलेगा फान अल्लाह हुवल गनी, हुवल गनी। जी 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 जी। अच्छा हुवल गनी क्या तजाद नहीं? तजाद साबित करें ना पढ़ के बाद किरात में तजाद। भाई, पढ़ के तजाद साबित करें आप। तजाद क्या है अल्लाह उल गनी कहा, भाई? मैंने आपको बता, अल्लाह उल गनी कहा तो किरात में तजाद है। तजाद पढ़ के दिखाएं क्या है? अल्लाह उल गनी, तजाद का फर्क है।
तजाद क्या फर्क, कौन सा क्या फर्क है तजाद में, क्या फर्क है? ये तो आपने बताना है, आपने इत्तेजाद साबित करना है, साबित करें। लाए मेरे पास लाए दोनों आप में। कुरान में लिखा और मेरे भाई आपको तो एतराज करना भी नहीं आता। लाए मैं आपको जवाब दूं, लाए मैं आप दोनों दे मुझे जरा। चलो जी, अब देखो कहा गया, लाए जी। सवाल आपका है, जवाब इन्होंने देना यार, है। इधर तो जी। जवाब आप दे दीजिए क्या ताकि एक मुनाजरा में खत्म करें। क्या कहा गया जी? एक में भैया पहले जवाब तो देने का, आप दरमियान में बोलते जा रहे हैं। मैं वही तो नोट करने लगा हूँ। नहीं, आप एक- खामोशी से सुन लें। अच्छा मुझे वो जरा करके दे दो। मैं आपको दिखा रहा हूँ बाकायदा। तो लाए बस मुनाजरा भी खत्म हो गया, बस एंड ही है। यार इधर ये इसकी लाइट जलाओ, इसकी जलाओ। नहीं वो आप पढ़ के दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है? तजाद बताएं क्या है? फान अल्लाह हुवल गनी इसमें फान नहीं नहीं ऊपर है, नहीं इसमें नहीं लिखा हुआ। नहीं ये देखा अल्लाह हुवल गनी, ਇੱਥੇ ਖਲੋਗੇ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕੰਮ ਸਰ। नहीं नहीं आ जाए इधर आके कर दे। अल्लाह हुवल गनी। ओ भाई किथों फान यार, क्या हो गया यार आप? ओ नहीं यार भाई फान यार ना कर। चलिए मैंने लफ्ज़ गलत अदा किया, गलत अदा किया। वो अल्लाह हुवल गनी, मैं हूं में जब तवज्जो करा रहा, फान पे जा रहे हैं। आप फान कर, आप कह रहे हैं फान, आप कह रहे हैं। आपका हफ्स का कुरान अच्छा सुन ले जी, सुन ले, अब आ गया सामने। ये मौजूद है ना? अच्छा आप सुन ले यार, ये फान देख ले अच्छा पहले। सवाल है आपका, जवाब देना आपने। हूं जी का इजाफा, इसमें तजाद साबित कर दें। इजाफा है। क्या पहले तो क्या? हफ्स में इजाफा है। नहीं नहीं अच्छा लिखत में नविश्त में और नहीं भाई, आपको पता ही नहीं है। नविश्त में कोई और मैं बताता हूँ ना, आप बता रहे जरा। ठीक है। आप तजाद साबित वो कह रहे हैं कर देना। इजाफा नहीं है। मैं वहां खड़ा होके आपको बता देता हूँ, आपको जो समझ नहीं आ रही, जो आप आके बता दे ताकि खत्म को करें आप फान पढ़ रहे हैं, और जैसे ही होवा को होवा लगनी को, यही आप कर रहे नहीं, हैं। गलत हो गया आपसे। अल्लाह हु अल गनी, यहाँ लिखा है, वहां लिखा है अल्लाह उल गनी। अल्लाह और गनी के बीच भाई में हु का तजाद इजाफा है। साबित करें ना। तो सर ये तजाद ही तो हुआ। इसी तरह का तजाद आप मुझे दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। कौन सा अरफक्सत वाला, कौन सा? अरफक्सत सुभान वाला, उमरों वाला। अल्लाह, सुबह ओथे थे आपने बाप बदल दिया यार, क्या बात चले जी, कर चले रहे जी, हो? हो गया, जवाब इसमें हो गया। नहीं, इसमें तजाद नहीं यार ऐसे। हाँ जी। भाई इसमें इन्होंने तजाद साबित करना तजाद ही तो है। है, ये फाइनल बात। क्या तजाद है बता दे। उल गनी, हु का हु और इस हु यहाँ क्या पे हूँ, वहाँ क्या पे- है उधर नहीं है हूँ। यहाँ पे हु नहीं है ना सर। अल्लाह हु में भाई तजाद वो कह रहे हैं मानी में फर्क नहीं आ रहा सर। और मेरे भाई हाँ जी, इख्तलाफ और किरात। तजाद क्या आया? अच्छा इख्तलाफ मतन नहीं है, इख्तलाफ मेरे किरात। भाई तजाद क्या आया, ये साबित करो आप। हु का, क्या हूँ? हु अल गनी का और अल्लाह अल गनी का। जब हु मौजूद नहीं है, जब इसमें मौजूद नहीं है, जब रस्म उस्मानी रस्मुल खत, उस्मानी रस्मुल खत का इतना ज्यादा पास रखा गया है कि कोई शख्स बदल नहीं सकता। जी 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 प्लीज, जी प्लीज हंसे, चले हंसे हंसे सर। हंसे हंसे आप प्लीज जी 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 सर जी बिल्कुल सर। जिसका आपको पता नहीं है, हाँ जी। आप कह रहे हैं जी, ये देखें जी, हाँ। हुआ है, हाँ जी। हुआ है, ये है वो। पहले तो आप ये लफ्ज़ है फ़इन्नल्लाह। फाइन ना, बस ठीक है, फाइन अल्लाह हो गया। मैं आप इसे पढ़ रहे थे फान। मैंने गलत पढ़ा, मैं माजरत अब करता हूँ आपको यही नहीं पढ़ना आता तो किरात का फर्क आप कैसे? सर। ये अब मेरा इल्जाम छोड़े, हु मौजूद है यहाँ और वहाँ नहीं की है। भी बात करता हूँ भाई, वहाँ भी मौजूद है, आपको कहाँ है दिखाइए, मैं निकाल के देता हूँ ना। दिखाइए ना। फर्क तो यही है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जिस तरह आप फान को फ़इन्नल्लाह को फान कह रहे ठीक है हैं, ठीक है। वहाँ भी ऐसा ही मसला है। अच्छा जी दिखाइए अब सर। मसला ये है, फ़इन्नल्लाह हल गनी, ठीक है? हल कहाँ लिखा है इसमें? हाय मेरे अल्लाह, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये किरात का फर्क है, आपको पता ही नहीं था। नहीं ये हु वहाँ पे पूरा, मैं यहीं पे नजर आ रहा है मुझे। हु वहाँ पे पूरा कीजिए, ये तशदीद है कि नहीं, ये क्या है? वहाँ पे हु मुकम्मल कीजिए। ये तो यहाँ भी लगा हुआ है, ये तो यहाँ भी लगा हुआ है भाई, इधर भी मौजूद है। हाँ तो मौजूद है ना? हाँ जी, फर्क क्या है बता दो। इसमें हु का फर्क है और वहाँ पे आपने जब हु का फर्क नहीं पाया तो तशदीद दे दी। वो हल गनी पढ़ रहा है, वो हुवल गनी पढ़ रहा है, ये अराब- किरात का फर्क है। माना क्या बदला? अराब जब लगाए गए तो बात किसकी की जा रही है? गनीउल हमीद की? जी जी, हुवल गनीउल हमीद की, एक मिनट, अल्लाह हुवल गनीउल हमीद। ठीक है, अल्लाह की बात हो रही है। जी, अल्लाह हु। गनीउल हमीद है, ये इसमें जात है। सर अल्लाह और हु में क्या, अल्लाह और हु में क्या फर्क है? आप पूरी कर लेना बात, नहीं अल्लाह और हु में फर्क क्या है? आप पूरी बात कर लें। अल्लाह और हु में फर्क क्या है, बस ये बताइए। अल्लाह और हु में फर्क क्या है, मुझे ये बताइए। हाँ जी, यही तो बताओ, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अल्लाह और हु में फर्क क्या है, मुझे ये बताइएगा बस। जी जी प्लीज। ये बात की जा रही है फ़इन्नल्लाह, हाँ हाँ वो
जो अल्लाह हाँ हाँ होवल गनीयुल हमीद, ओके वो गनी है, सिफ्तों का वालिद, ठीक है हमदो हमीद, हमदो सिफात, बिल्कुल ठीक है अब यहाँ है इन्नल्लाह हल गनीयुल हमीद, वो हुल पढ़ रहा है, ये हल पढ़ रहा है, ये फर्क क्या है? जमीर वही है, माना वही है, इसे कहते हैं किरात का फर्क। हल के मानी क्या है? ये आप बता रहे हैं। हल के मानी क्या है? मैं हु के मानी तो वो हुआ वो, तो ये भी हुई, ये क्या है? हल के हल और हु एक होता है? नहीं, हल और हु एक ही होगा। ये किरात का फर्क है, तजाद तो नहीं है। चले ठीक है, ये बात तो नहीं बता दिया। चलो जी ठीक है, मकसद था कि ईमान था। चलो जी ठीक हो गया, चलो जी अब तशरीफ रखें। एक भी साबित मैं तशरीफ अभी रखें। एक बड़ा दावा, एक बड़ा तजाद साबित करता हूँ पूरा ईमान और बयान में। अभी भाई ये तो बयान करने दो। बयान कर लूँ या रहने दूँ? क्या एक नहीं, ये तो अब मेरा चले मेरे जी, सवाल आते चले हैं। बैठ एक जाए। बड़ा तजाद बयान कर लूँ या छोड़ दूँ? क्या? छोड़ दे, छोड़ दे, बड़ा छोड़ दे। अभी रह गया, अभी तक तो छोड़ दे, आपने कोई कुछ मसला नहीं नहीं, किया, तुम्हारा- अभी नहीं, तक तो मुनाजरा आपने कुछ नहीं रख सकते किया। हैं इस मौजू पे। अब अच्छा ठीक है, छोड़ें आपने नहीं, एक मिनट, छोड़ें, आपने 10 सवालों में से आज 10 सवाल, हो गए हैं। सुनिए 10 हो हाँ गए, जी। एक मिनट, हाँ जी, 10 सवालों में से 10 सवाल हो आपने गए। 9 सवाल मुझे सिर्फ बाइबल पे किए, 4500 तजादात पे नहीं किए। पहला सवाल आपने ये किया था, मैंने यहाँ पे किया तो आपको उठ के यहाँ से आके मुझे समझाना पड़ गया। वजह यह है कि जब आम आदमी, आप तो इतनी बात कह रहे हैं, जब अराब को साइड पे करते हैं, जब एक साफ सुथरा लफ्ज़ लिखा हुआ है तो वहाँ पे जब नहीं मिला तो उसके अंदर आप अराब के साथ अगर उसको छुपाने की कोशिश करें कि यहाँ पे इसको ऐसे देखा जा सकता है, तो इसको क्या करें? अब मैं बात करता हूँ नाफे, इमाम नाफे की किरात और इमाम आसिम की किरात। ठीक है, बड़ी साफ सुथरी सी बात करने लगा हूँ जो बड़ी आसान है। आपने किरात पर अब बात तो मैंने करनी थी, अब बात वो कर रहे हैं। तो बस ये यही बारी सवाल तो है ना। मेरी थी। नहीं ये- तो आपका 10 अब कोई रह गया था, पढ़ाते पढ़ाते अब खुद उसमें अगर कोई मुनाजरा रह सेट गया गए। ना, मेरी बात सुने, आपके 10 सवाल पूरे हो गए हैं, अगर आपने कोई रह जवाब दे गया दिया है, अगर कोई रह गया है तो पार्ट 2 कर लेते हैं। चले बैठ जाए आप। Part 2 कर लेते हैं। वो मुनाजरा अलग से कर दीजिए। नहीं, फिर वो मुझे भी मौका दीजिए। हाँ जी, चले जी, फिर ऐसे नहीं होगा, फिर अगर आप करेंगे तो फिर हाँ मुझे जी। भी मौका दीजिए। आज बैठे। बात जो रह गई मैं बता शहबाज साहब बैठ क्या? जाइए प्लीज। हाँ जी, आप भी सर। का दावा 4500 तजादात का था, आपने एक भी तजाद पेश ना किया। मुझे एक तजाद ऐसा पेश कर दें जिस तरह इसको तजाद कहते। टाइम भी हमारा जो है वो ओवर हो चुका है और दोनों साइड से 10-10 सवालात जो है वो किए जा चुके हैं। और बहस अगर की जाए तो ये तो एक बहुत लंबा और बड़ा वसी चैप्टर है, इस पे आप सारी रात भी बैठे रहेंगे, सारा दिन भी, महीनों महीने भी बैठे रहेंगे तो ये ना काफ़ी होगा। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं इस सारे वक्त के लिए, इस सारी गुफ्तगू के लिए जो बड़ी खुश उसलूबी से पाया अंजाम को पहुंची। और आप तमाम सामीन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने बड़ी बड़े तहम्मुल से इस सारे मुनाजरे को सुना। हम शुक्रगुजार हैं जनाब हकीम इमरान साकिब के, अफजल जमाल साहब के, यार वो मेरी सुलंगी क्या- साहब के, शहबाज साहब के और आरिफ नकीम साहब के, जिन्होंने वक्त निकाला, ये सारा इंतजाम किया। सो मैं, हाँ जी, मैं इस तमाम बातों के लिए, हाँ जी, तमाम बातों के लिए शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस मुनाजरे को पहले बंद, फिर आप कर दीजिएगा। नहीं, सो दोनों ये का मुनाजरा एक कुछ मिनट- सूबी से एक मिनट प्लीज बात सुनो। पाया तकमील को पहुंचा मुनाजरा, जोशवा साहब, जोशवा साहब। इख्तिताम पजीर है। अब आप बात प्लीज सर, हाँ, नहीं मेरी बात सुन, इन्हें भी मौका दें, उनको दोनों को, ये साथ जो है ना वो मुआवन थे। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, मसला नहीं, बैठे में जी, वो हाँ, हाँ। दे रहे हैं लेकिन आप लेकिन मुनाजरा जो है वो खत्म हो चुका है। वैसे अफजल जमाल साहब आए और कुछ इजहार ख्याल जो करना चाहते हैं, आरिफ नकीब साहब, आपके लिए भी मौका होगा। हाँ जी, जी जी, चेयरमैन साहब के लिए कमल पूरा मौका है। कमल साहब को भी दीजिएगा जी। तमाम दोस्तों को सलाम मेरी तरफ से। कलाम इलाही से मोहब्बत करना, कलाम इलाही को सीखना, ये ईमान का हिस्सा होता है। इल्हामी किताबें, हमें इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास इल्हामी किताबें हैं। वो अक़वाम और वो मज़ाहिब जिनके पास इल्हामी किताबें नहीं, उनके पास अपनी बनाई हुई किताबें और अपने बनाए हुए नज़रियात और कवानीन उनके पास हैं, वो अक़वाम आज नाकाम हो चुके हैं। जिस तरह की इश्तराकियत है, इल्हाद है। याद रखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा इल्हाद का सामना जो हमारे मसीही भाई हैं इन्हें है। फिर इल्हाद का सामना हमारे अंदर मुसलमानों में भी इल्हाद का सामना हमें भी है। इल्हाद कहते किसे हैं और सेकुलर कहते किसे हैं, आप दोस्त इसे बखूबी जानते हैं कि मज़हब से तल्लक बिल्कुल टूट जाना, किताबों से तल्लक, इल्हामी किताबों से तल्लक टूट जाना
اور عبادت خانوں سے تعلق ٹوٹ جانا. ٹھیک ہے, جب عبادت خانوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور الہامی کتابوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بندے کو الہاد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا ہے ہماری آج نوجوان نسل, وہ کیوں مذہبی کتابوں سے دور ہے؟ ہمارے لیے یہ سوچنے کے قابل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, میں بحیثیت مسلمان ہونے کے میں بھی اس پہ غور کروں, آپ دوست بحیثیت مسیحی ہونے کے آپ بھی اس پہ غور کریں کہ ہماری نوجوان نسل گھر تو چرچ کے قریب ہے, نیرر دا چرچ فارر دا گاڈ, یہ انگلش کا ایک مقولہ ہے. ہم یہ پڑھا کرتے تھے, اپنی جو درسی کتابیں ہیں اسکول کی کالج کی پڑھا کرتے تھے کہ جتنا کوئی عبادت خانے سے قریب ہوتا ہے, چرچ کے عبادت خانے, اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے گاڈ سے دور ہوتا ہے. اس الہاد کا سامنا کرنے کے لیے یہ سارا پروگرام ہم مرتب کرتے ہیں کہ ہم بھی سیکھیں, آپ بھی سیکھیں. اب دیکھیں, یہ ہمارا جو آج کا یہ پروگرام تھا یہ محض یہیں پہ ختم نہیں ہو گیا اور نہ ہی یہیں سے شروع ہوا ہے. اس پروگرام کے لیے ہمیں بھی کتابیں کھنگالنا پڑی, دیکھنا پڑی. ہمارے فاضل بھائی پادری شہباز صاحب, شہباز کرے پرواز, ہاں ہمارے بھائی شہباز صاحب, انہیں بھی کتابیں کھنگالنا پڑی, تیاری کی, کئی کتابیں انہوں نے دیکھی اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا. میں ایک منٹ حکیم صاحب, اسی طرح ایک منٹ میں ایک جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی پادری شہباز شمشاد ناج, دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو عنوان منتخب کیا تھا, میں داد دیتا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ سارے بھائی ان کے لیے ایک بار کلیپنگ کر دیں. یہ سنیں, میری بات سنیں پلیز. یہ عنوان کوئی عام آدمی نہیں رکھ سکتا. میں آپ کو بتاؤں 80% علماء جو ہیں انہیں بھی اس کا علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور ہاں یہ ہے, چلے ان کا مطالعہ کچھ ناقص تھا, انہوں نے اسے قرات کا جو فرق ہے اس کو کنٹراڈکشن سمجھا. بہرحال میں داد دیتا ہوں, ہاں میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا موضوع منتخب کیا, اور اگر وہ چاہیں تو ہم اس کو پارٹ 2 3 اسے چلائیں, اور ہاں بعد میں, اور اگر وہ پسند کریں تو تواتر کے اوپر بھی کس کو درجہ حاصل ہے, قرآن کو یا بائبل کو, اس پہ بھی ڈبیٹ رکھیں. جی ہاں. اور اس میں میں ایک داد دیتا ہوں محترم ہمارے بھائی جوشوا اسلم صاحب, انہوں نے بھی بڑا, جس طرح کہ محترم پادری شفیق کمل صاحب نے توجہ دلائی, اور توجہ دلانے کے بعد انہوں نے اپنا اچھا کردار ادا کیا, اور اپنا آخر تک پھر انہوں نے اپنے کمل صاحب کے لیے کلیپنگ کر دیں, اور اپنے ہونے کا ثبوت انہوں نے پھر پورا اپنے ہونے کا ثبوت دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے, اور مذہب کے ساتھ, الہامی کتابوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ تمام دوستوں. عارف رقیب صاحب. تھینک یو سو مچ. مسیح یسوع کے جلالی اور پرتقدس نام میں آج کی صبح آپ کو میرا سلام ہے. اگر 12 بج گئے ہیں تو صبح ہو, اگلا دن شروع ہو گیا. تو جس طرح کہ میرے محترم بھائی جمال صاحب نے یہاں پر فرمایا کہ ایک تو سب سے یہ ہے کہ مطلب عزت و احترام کا جو پہلو ہے وہ کسی بھی طرح سے کہیں سرکنے نہ پائے, یہ ہونا چاہیے. آمین. اور ہوا تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, تو میرے خیال میں, اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں ماڈریٹر صاحب کا کہ انہوں نے بڑی محنت کی بیچ میں کہیں ہر جگہ روکنے کی, لیکن کوئی نہیں رکا تو وہ ان کی غلطی نہیں ہے. تو یہ اس لحاظ سے, تو جہاں تک جمال صاحب کی باتوں کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اخلاقیات پہ ہی توجہ دے لیں. حکیم صاحب جی میں جی معذرت, آپ یہ گلا تو کرتے ہیں کہ میں گجرا مولا آپ کو نہیں ملا, لیکن آپ میری بات نہیں سن رہے. میں سن رہا ہوں پلیز. وہ تو آپ نے, وہ میرے قریب ہی تھا, وہ فرانسی صاحب, مجھے علم نہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے وہ گزرے, میرا حال تک نہ پوچھا. چل خیر, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ
جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ مباحث جو ہیں یہ اصل میں ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے، نہیں بالکل یہ تاکہ ہم اپنے اپنے مذہب کے تناظر میں رہ کر، اپنے اپنے دین کے تناظر میں رہ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی اخلاقیات کو سمجھ لیں تو شاید جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ شاید کبھی نہ ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس طرح سے مل بیٹھنا یہ ایک بھائی چارے کی وہ مثال ہے کہ ہم مذہب پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ مثال ہے کہ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھانے کی نہیں. ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش، اور بڑا اچھا ہے کہ آج ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور میں پادری شفیق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. حیرت ہے اب کھڑے ہو گئے ہیں. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش، بڑی نوازش. سو میں آپ سب کی تالیوں میں کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے چیئرمین جناب شفیق کنول صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اظہار خیال کے لیے سامنے آئے. شکریہ. محبتوں میں خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں، محبتوں کا تقاضا ہے درگزر کرنا. اور آپ کو پتہ میں مناظروں کا خود بہت شوقین ہوں، لیکن آج مجھے تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ جب ہم آئے تو ہمیں کہا گیا تھا بریانی ہے، فکر نہ کریں، لیکن سارے مناظرے میں کھچڑی پکتی رہی. کھچڑی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. دونوں طرفین کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی نہیں، کہ مناظرات جب بھی کریں تو اس سے پہلے بیٹھ کے ایک پیپر پہ لکھ لینا چاہیے، ایوری سنگل پوائنٹ لکھ لینا چاہیے. آج جو زیادہ خرابی ہوئی ہے وہ آپ نے سب کچھ لکھا نہیں تھا یا ابہام پایا جاتا تھا، تو اس سے پھر گڑبڑ ہوئی. دوسری بات کہ بہترین رزلٹ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو 2-3 فارمیٹ ہیں، ان میں سے آپ کوئی سا بھی اپنا لیں، لیکن 3 فارمیٹ کو یکجا کر کے ایک نیا فارمیٹ بنا کے آپ نہ کریں. مطلب یا تو آپ پریزنٹیشن کر لیں یا پھر آپ کویسچن آنسر کا رکھ لیں. اب اس میں آپ نے پریزنٹیشن بھی دونوں میں کر لی، پھر کویسچن آنسر بھی لمبے کر لیے آپ نے، تو اس میں ذرا پھر تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے. صرف سوال کریں، آپ 15 سوال رکھ لیں، 10 سوال رکھ لیں، اور ایک سوال کے جواب میں ایک سوال ہم کریں گے، یا ایک سوال کے جواب میں ہم 2 سوال کریں گے. جی آپ نے یہ تو کیسے کہہ دیا، تو یہ کیسے ہے، طے کر لیں پہلے سے. ان لمیٹڈ نہ چھوڑ دیں. آج میں جو دیکھ رہا تھا کہ اس میں ان لمیٹڈ، ادروائز یہ کویسچن آنسر. یشوا صاحب کی سر بڑی ہمت ہے. ہاں تو دونوں کا مقابلہ کیا. اینی وے جب جوشوا صاحب نے اچھا کیا. کسی اور نے بھی مناظرہ کرنا ہے تو اس کی شرائط طے کرنی ہے، تو ہماری خدمات حاضر ہیں تاکہ اس قسم کی وہ جو ماحول خراب ہوا یہ نہ ہو. باقی اوورال آپ دونوں نے بہت اچھا کیا، میری طرف سے دونوں کو مبارک. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. سو ہم ایک بار پھر میں آپ سب کے لیے شکر گزار ہوں. سو اب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ چیئرمین صاحب نے جو اظہار خیال کیا ہے اس میں پھر میری داد بنتی ہے کہ اس ان لمیٹڈ مناظرے کو جس طرح سے کلوز کیا ہوا میں جانتا ہوں. بالکل. سو خدا آپ سب کو برکت دے. مناظرہ برخاست ہے. پادری شمشاد صاحب.